Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, today we are going to start our exercise 2.5. Here I am doing all the questions of exercise 2.5, and you can watch the video from the question in which you are having doubt. And so listen, firstly you have to try all the questions. Firstly you have to try all the questions, and if you are having any problem in any question, then try that question 2 times, and after that watch this video. So students, we will start today. We will start our solution of exercise 2.5. Here we are going to do solution of exercise 2.5. So students, in our exercise 2.5, we will start with our question number first. So students, what is your question number first? It is x by 2 minus 1 by 5, and it is equal to x by 3 plus 1 by 4. So students, we have to solve this equation. And students, here the equations are not in the simplest form as in our exercise 2.1 and 2.2. जैसे exercise 2.1 and 2.2 में थोड़ी सी आपकी इक्वेशन जो थी सिंपल फॉर्म में थी ना, यहाँ देखो थोड़े फ्रैक्शन आ गए हैं. Here equations are somewhat complicated and we are going to reduce them in the simplest form. So students, अब यहाँ देखिए, what we will do, हम क्या करेंगे, we will take the variable term on the same side and constant terms they are on the same side. अब यहाँ मैं variable terms जो है स्टूडेंट वो ले आता हूं मैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड. अब x by 2 तो यहाँ ऑलरेडी है ना. अब x by 3 को ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x by 3 इज इक्वल टू, हियर 1 by 4 इज ऑलरेडी देयर, एंड अब माइनस 1 by 5 को ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 by 5. So student, in question number first, I have done nothing. I have just taken the variable terms on the same side and the constant terms are on the same side, and their sign are decided according to the transposition rules. So student, in left hand side, what is the LCM of 2 and 3? It will become 6. LCM of 2 and 3, it will become 6. Now what is the first term? Here what is first term in numerator? For that we will divide 6 by 2. 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 3. मल्टीप्लाइंग 3 by x, it will become 3x. Now what is the operation here? Minus. Now student, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट. Now we will divide 6 by 3. अब 6 को 3 से डिवाइड करो, क्या है रिजल्ट, 2. 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, it will become 2x. Then students, here what is the LCM of 5 and 4? It will be 20. Now what is the first term here in numerator? Divide 20 by 4. 20 by 4 क्या आएगा, 5. 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस 20 को 5 से डिवाइड करो 4. 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4. देन इट विल बिकम 2x 3x minus 2x, that is x by 6 is equal to, x by 6 is equal to 9 by 20. अब हम x की वैल्यू चेंज करें. if you only want the value of x, for that I will transpose 6 to right hand side, then what it will become, it will become x is equal to 9 by 20 into 6. Now further solving, 2 3s are and 2 10s are 20. So x is equal to 27 by 10. So students, this is our solution of first question. In first question we have done nothing. I have just taken variable term on the one side and the constant term on the same side, and then after I have solved them, and after solving them they are reduced to simplest form, and then after I have obtained the value of x. Now friends, in second question we have to find the value of variable n, and now here all the terms of left hand side are of fractional form, and also friends, what you have noticed that in left hand side all the variable terms. That means हमें कुछ भी नहीं करना इस second question में. We have to just solve the left hand side and then after proceed according to that. First of all, for solving the left hand side, I have to find out the LCM of 2, 4 and 6. We have to find out the LCM of 2, 4 and 6. हम find out करते हैं, देखो स्टूडेंट. Dividing by 2, 1, 2, 3. Now again 2, divide near as it is, 1, divide near as it is. Now 3, 1, 1. यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा स्टूडेंट, that is 2 into 2 4 into 3 12. Now here LCM is 12. Here the LCM is
12. Now stand. What is the first term of numerator? यहाँ पर न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स? Now what is the first term of numerator? For that I will divide the denominator. For that I will divide the denominator by first denominator by LCM. Sorry, we will divide the LCM. हम क्या करेंगे? LCM को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट डिनोमिनेटर से. 12 को 2 से डिवाइड करो. डिवाइडिंग 12 by 2. What is the result? 6. अब जो रिजल्ट आया 6 उसको n से मल्टीप्लाई करो. क्या हो जाएगा? 6n. Now what is the sign माइनस? अब 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. डिवाइडिंग 12 by 4 3. और फिर आप 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3n 9n प्लस यहाँ पर हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 से 2 एंड 2 को फिर आप 5n से मल्टीप्लाई करो. देन इट विल बिकम 10n is equal to 21. Now stand 10 plus 10n plus 6n 10n plus 6n 16n 10n plus 6n 16n 16n minus 9n that is 7n by 12 is equal to 21. Now further solving 12 को ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट इट विल बिकम 7n is equal to 21 into 12. Now for finding the value of n I will transpose 7 also. So n is equal to 21 into 12 divided by 7. It will become 7 1s are 7, 7 3s are 21. That is equal to 36. So students in question number second our answer is 36. Now students we are going to solve third question. So the students read out question number third. Now students we are going to solve question number third. So students in question number third we have to find the value of variable x. We will proceed in the same way. I will take the variable terms on the same side and constant terms I will take them on the one side. Now I am taking variable terms on the left hand side. So here x and 8x by 3 they are already on left hand side. So writing them x और ये क्या minus of 8x by 3. Now a minus of 5x by 2 minus of 5x by 2 transpose करेंगे it will become plus 5x by 2 that is equal to 17 by 6. Now plus 7 of transpose करोगे it will become minus 7. Now what we will do? We will solve left hand side and right hand side separately by taking the LCM. Now what is the LCM of 2 and 3? It will become 6. Now stand what is the first term? यहाँ पर denominator कुछ भी नहीं है. I will take here x. Now what is the first term in the numerator? Now divide 6 by 1. That is 6. अब जो 6 है उसको x से मल्टीप्लाई करो 6x माइनस. अब 6 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करेंगे here multiplying 6. Here multiplying 6 by sorry dividing 6 by 3. क्या रिजल्ट आएगा 2. Now 2 into 8x that is 2 into 8x that is 16x. Now what is the operation here? Plus. अब 6 को आप डिवाइड करोगे 2 से. 6 को आप डिवाइड करोगे 2 से क्या रिजल्ट आएगा 3. 3 को आप 5x से मल्टीप्लाई करोगे it will become 15x that is equal to here taking denominator भी 1. यहाँ क्या हो जाएगा LCM 6. Now 6 को 6 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 1. 1 को 70 से मल्टीप्लाई करो 17. अब क्या साइन है माइनस. 6 को 1 से डिवाइड करो डिवाइडिंग 6 by 1. 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6. अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो it will become 42. Now students here solving the numerators 6x plus 15x 6x plus 15x that is 21x 21x minus 16x 21x minus 16x that is 5x by 6 that is equal to now 17 minus 42 17 minus 42 when we will solve this it will become 5 1 carry 3 2 minus of 25 by 6. Now in left hand side and right hand side ये देखो स्टूडेंट जब भी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिनोमिनेटर हो और कंप्लीट राइट हैंड साइड में कोई भी डिनोमिनेटर हो और वो आपस में सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट में डिनोमिनेटर क्या है 6 और यहाँ राइट हैंड साइड में कंप्लीट में डिनोमिनेटर क्या है 6. यानी कि दोनों कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड और कंप्लीट राइट हैंड साइड. सिंगल टर्म का नहीं बोला मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ. कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड एंड कंप्लीट राइट हैंड साइड अगर सेम डिनोमिनेटर है ये भी यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट. नाउ व्हाट विल बिकम हियर 5x that means 5x is equal to minus of 25 and here x is equal to minus of 25 by 5.
सोल्व करोगे इट विल बिकम माइनस ऑफ 5. So students, this is our answer of question number 3. It is our x is equal to minus 5. Now students, we are going to solve question number 4. Now students, we are going to solve question number 4. Now students, we are going to solve question number 4. And students, in question number 4 we will study a method that is cross multiplication method. Cross multiplication method. So students, how this method works? Okay, we will look upon this, how this method will works. अब ये देखो स्टूडेंट, यहां पर अगर हम इसको रिमूव करना चाहें 3 को या फ्रैक्शन से, तो हमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को 3 से करेंगे तो राइट हैंड साइड भी 3 से हो जाएगी. बट अब यहाँ पर क्या है, 5 भी हम इसको भी फ्रैक्शन से हटाना चाहते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज फ्रेंड 3 into 5 क्या आप देख लो, 3 into 5 दैट इज 15. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर आपका 3 और 5 जो फ्रैक्शन में ये क्या हो जाएंगे, रिमूव. सो स्टूडेंट, वी विल प्रोसीड हियर. नाउ इट विल बिकम 15 into x minus 5 by 3, that is equal to 15 into x minus 3 by 5. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, that is 5 into x minus 5, and here it is 5 1 जा and 5 3 जा, that is 3 into x minus 3. अब स्टूडेंट ये देखो, कुछ ऐसा नहीं होगा क्या कि 3 तो इस साइड क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3 into x minus 3 और 5 देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड आपका आकर मल्टीप्लाई हो रहा है. और यही अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये मेथड क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. स्टूडेंट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था. वी विल नॉट डू इट इन आवर सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन डायरेक्टली कहां से प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं. जब भी आपका कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिनोमिनेटर हो और कंप्लीट राइट हैंड साइड में कोई डिनोमिनेटर, दोनों तरफ अगर डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम किस मेथड से प्रोसीड करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मींस ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा. स्टूडेंट, ये नहीं है कि आपने 3 को ट्रांसपोज किया है, सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा. 3 is multiplied to x as well as 3. इन द सेम वे जब हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 5, यानी कि 5 x से मल्टीप्लाई होगा और 5 5 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो स्टूडेंट, हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को आप इस साइड ट्रांसपोज कर दो, 3 is multiplied by x minus 3 and here 5 is multiplied by x minus 5. अब आप जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट, बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. 5 is distributed to x, that means it is multiplied to x and it is also multiplied to 5. So 5 into x, 5x, what is the sign here, minus. 5 into 5, 25, that is equal to 3 into x, 3x, now minus 3 3 are 9. नाउ स्टूडेंट, अब ये देखो 3 के सामने क्या साइन है, प्लस. कोई भी साइन नहीं होगा तो प्लस होगा ना. अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस. सो इट विल बिकम 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 9h रहेगा, माइनस 25 को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 25. सो हियर इट विल बिकम 5x minus 3x, that is 2x is equal to, now 25 minus 9, 25 minus 9, that is 16. That means x is equal to 16 by 2, that is 8. Standard cross multiplication method, that is important. Here the value of x is 8. Fourth question में आपके x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, that is 8. And in this question stands, remember cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब नहीं होगा जब किसी एक टर्म में डिनोमिनेटर हो. नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी अप्लाइड when there is a denominator in complete left hand side and when there is a denominator in complete right hand side. उस केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर तो क्रॉस होकर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो आपका राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है ये इस साइड आकर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. ये देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. Now we are going to discuss our question number 5.
Now stand, we are going to discuss our question number 5. And here the denominator are not under the complete left hand side और right hand side, ये सिर्फ टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर हैं, तो स्टैंड इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे स्टैंड, जो न्यूमरेटर की टर्म्स है ना इनको अलग अलग से आप ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करेंगे, देखो अगर 3t - 2 को 4 डिवाइड करें, दैट मींस 4 जो है वो 3t को भी डिवाइड कर रहा है और -4 जो वो 2 को भी डिवाइड करेगा। यहां पर मैंने टर्म्स को ब्रेक कर लिया स्टैंड। अब माइनस है ना स्टैंड, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो माइनस का होगा, अब माइनस अंदर जाएगा तो इस साइन को भी क्या कर देगा, चेंज। तो ये क्या हो जाएगा आपका -2t/3, और ये बाहर माइनस साइन है तो ये भी चेंज हो जाएगा, दैट इज -3/3, दैट इज इक्वल टू 2/3 - t। अब देखो मैंने सभी टर्म्स ब्रेक कर ली हैं। नाउ आई थिंक इट इज वेरी इजी, वी विल टेक वेरिएबल टर्म्स ऑन सेम साइड एंड द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द सेम साइड। नाउ स्टैंड व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, सिर्फ जो टर्म के डिनोमिनेटर थे ना उनको मैंने हर एक के अंदर हर एक के नीचे अलग अलग से ले लिया। जैसे 3t - 2/4 था तो ये हो गया आपका 3t/4 - 2/4। अब ये माइनस था तो ये माइनस के साथ तो अटैच रहेगा, और अगर यहाँ माइनस साइन है ना तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस, तो ये 2t/3 और ये -3/3। और मैंने राइट हैंड साइड को कोई ज्यादा सोल्व नहीं किया। अब यहां देख लो स्टैंड, कोई टर्म अगर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रही है तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3t/4 - 2/4, वी कैन राइट डाउन इट इज 1/2 माइनस ऑफ 2t/3, और ये क्या हो जाएगा -3/3, दैट इज -1 इज इक्वल टू 2/3 माइनस ऑफ t। Now stand, what we will do, we will take variable terms on the same side and the constant term on the same side. Stand, in these videos I am always taking the variable term on the left hand side, but we will do according to our convenient। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं वेरिएबल टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊं और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, ये डिपेंड नहीं करता। सो डोंट मेक इट ए कन्वेंशन कि हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, हम हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेंगे। सो स्टैंड हियर, ये देखो that is your variable term, it is also, and here it is also variable term। तो दो तो आपके ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या हो जाएगा 3t/4 माइनस ऑफ 2t/3, एंड here माइनस t आप ट्रांसपोज करोगे इट विल बिकम प्लस t, दैट इज इक्वल टू, अब ये 2/3 एच टी हो जाएगा। अब किसको ट्रांसपोज करें, एक तो देखो -1/2 को ट्रांसपोज करें, -1/2 ट्रांसपोज करोगे +1/2, -1 को ट्रांसपोज करेंगे +1, मैंने इनको ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो स्टूडेंट यहां मैंने क्या किया, वेरिएबल टर्म को सेम साइड ले आया, और ये हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म्स, दे आर ऑन द सेम साइड। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 4 and 3, व्हाट इज द एलसीएम, हियर द एलसीएम इज 12, यहां पे एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट 12। नाउ हियर डिवाइडिंग 12/4, डिवाइडिंग 12/4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, और अब 3 को 3t से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 9t। नाउ माइनस ऑफ, अब 12 को आप 3 से डिवाइड करो, 4 को आप 2t से मल्टीप्लाई करोगे, 4 into 2t दैट इज 8t, प्लस अब यहाँ कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर दैट इज 1, तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, एंड 12 को t से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 12t, दैट इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इट विल बिकम 6, ये क्या हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा आपका। अब ये देखो, नाउ हियर डिवाइडिंग 6/3, 2 को रिजल्ट से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, प्लस अब 6 को डिवाइड करो स्टूडेंट 3 से, क्या 6 को डिवाइड करो 2 से, 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्या रिजल्ट आएगा 3, अब जो रिजल्ट है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 1 जा 3, नाउ यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1, प्लस अब 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, 6 को 1 से डिवाइड किया 6, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6। Now what will become here, 90 - 80, 90 - 80, 90 - 80, t plus 12t, that is 13t/12, 13t/12, it is equal to 6 into 6 plus 3, 6 plus 3 9, 9 4 जा 13/6। अब हम क्या करें स्टूडेंट, 12 को आप ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए ना, 12 को ट्रांसपोज कर लो, ये क्या हो जाएगा 13t is equal to 13 into 12/6, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। अब यहाँ देखो, अब 13t को आप ट्रांसपोज करो, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाए डिवाइड होगा, डिवाइड मींस ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस t is equal to 13 into 12/6,
6 into 13. Here what it will become 13 1 ja 13, 13 1 ja 13. 6 1 ja 6 2 ja. 1 into 2 2. That means the answer of this question is t is equal to 2. The answer of this question is t is equal to 2. So friends, here there are 5 questions from question number first to question number 5. Next 5 questions we will discuss in the next video. Now if there is any doubt in student first 5 question, you have to watch the concerned question, and if there is any doubt then again watch the video 2 times, and then after we will discuss that question in our June class also.